Yeah, so hey everyone, Sarish this side. So I came up with the third video of the networking playlist. So in today's video, I will be discussing about the OSI model. So this is the base of the networking of the computers. So to understand all the computer networks, you must understand the OSI model. So OSI stands for the Open Systems Interconnection Model. So firstly, I will going to tell you about that this is basically a theoretical model, and all the networking is based on it, but the implementation part has been based on the TCP IP model, which we will discuss in the next video. So let's move forward by discussing what are the OSI model, what are the different layers in this OSI model. So basically in OSI model there are total of 7 layers. 3 out of it are software layers, which operates with the help of software, and 3 layers are the hardware layers, and there is one layer which is the heart of the OSI model, that is transport layer. So let's understand what are the layers in it. So first one is application layer. If I am a sender, then my first layer will be application layer, and it will be moved as like this is as the second layer will be presentation layer. Third one is the session layer, transport layer, network layer, data link layer, and physical layer. If I am a receiver, I am receiving the data, then the order reverses, that is first layer will be physical layer, second layer will be data link layer, and so on. So let's understand the each layer individually. So here, so first one is application layer. So if I am a sender, then my first layer will be application layer. So application layer होती है, if I have opened the web browser, let's say Chrome. So let's say I have opened the Chrome application. Okay, so Chrome is a web browser. So I am like searching your data over there, and I am interacting the layers. So application layer is implemented in the web browser, and it provides various protocols. Like let's say HTTP, FTP, SMTP. Let's say I am searching the web pages. It uses the HTTP protocol. If I am transferring the files, it uses FTP protocol. SMTP for getting the mails, and all these stuffs like that, other and many more protocols. So all these are implemented into the application layer, and application layer is implemented in the application. Let's say application is Google Chrome, so this application layer is implemented in the Google Chrome. So let's move forward the next layer, that is presentation layer. So presentation लेयर करती क्या है, सिर्फ करती क्या है, डाटा को इनकोड करती है. इनकोड मतलब इसको इनक्रिप्ट करती है. दैट्स इट. मतलब लेट से डाटा आ रहा है मेरा कोई ए बी स्काई फॉर्मेट में आ रहा है, उसको कोई इनकोड कर देना किसी चीज़ में, ठीक है, किसी पर्टिकुलर इनकोडिंग टेक्निक से उसको इनकोड कर देना ताकि वो इनक्रिप्ट हो जाए डाटा, ठीक है, ताकि वो हैकर्स की तरफ से ऐसे ऐसे हैकिंग ना हो, उसकी डाटा की लीकेज ना हो. सो इट डिफाइन हाउ डाटा शुड बी इनकोड. तो अगर तो लाइक एप्लीकेशन लेयर के बाद प्रेजेंटेशन लेयर आ रही है, आई एम ए सेंडर, ओके, तो क्या होगा कि एप्लीकेशन लेयर का जो डाटा है वो इनक्रिप्ट होगा presentation layer में. अगर I am a sender, if I am a receiver, then the encrypted data will be decoded so that it will be displayed at the application layer. It is readable by the user at the application layer. So all this stuff is happening in the presentation layer, and after the data encrypts, it sends the data to the session layer. What is the session layer? Session layer करती क्या है? It makes a communication channel between the devices. ये दो डिवाइसेज हैं, उनके बीच में कम्युनिकेशन चैनल क्रिएट करना कि यार ये दो डिवाइसेस आपस में अब कम्युनिकेट करेंगे. ये क्या है? सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड लेयर है. ओके, सॉफ्टवेयर में इंप्लीमेंट की जाती है, ऐसा कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं होता उसमें, होता है बट सेशन लेयर उसको एज ए वर्चुअल कनेक्शन उसमें क्रिएट करती है, ठीक है. ये सॉफ्टवेयर की विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है. इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग दी सेशन. सेशन होता क्या है? आप सोचोगे यार सेशन क्या है, सेशन क्या है बेसिकली. So let's say I had opened a website. Okay, I had created a session between the in my device and that server. So a session is made over there that these two servers are connecting with these two devices are interacting with each other. So when I am transferring some data over there, let's say some interruption occurs, some internet connection like that, something exceptional thing occurs over there. So to maintain that at which point the interruption occur, it maintains the checkpoints over there so that it won't transfer the whole data again. It just transfer the data after that particular checkpoint when the transmission of that interruption fails. Let's move forward with by discussing the transport layer. Transport layer आ गई है, ये क्या है? हार्ट ऑफ द OSI मॉडल. सो इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है कि जो डाटा, अब हमारा सॉफ्टवेयर का पाथ खत्म हो गया, ठीक है, हमारी 3 लेयर मैंने डिस्कस कर दी.
जो कि सॉफ्टवेयर बेस्ड थी। अब आ गया वो जो हार्ट ऑफ द OSI है, वो क्या है कि इट टेक्स डाटा फ्रॉम द सेशन लेयर। सेशन लेयर से डाटा आया, ठीक है। अब डाटा बहुत बड़ा होगा, डाटा इज टू बिग, सो टू ट्रांसफर इट इनटू द to safely transfer it to the other devices, it should be break into some segments। तो क्या होगा, ट्रांसफर कुछ नहीं करती, डाटा आया उसको सेगमेंट्स में डिवाइड किया, सेगमेंट्स क्या है उसको पार्ट्स में डिवाइड किया, पार्ट्स में डिवाइड करके उसको आगे सेंड करना है, दैट्स इट। अगर मैं रिसीवर हूँ तो जो डाटा पार्ट्स में आ रहा है उसको रीअसेंबल करना है, तो दैट्स दी थिंग, ओके। सो इट आल्सो मेंटेन्स द फ्लो कंट्रोल। तो ये फ्लो कंट्रोल को भी देखता है। फ्लो कंट्रोल कैसे कि अगर मैंने डाटा सेंड किया है तो वहाँ पर उसको पहुँचा है कि नहीं पहुँचा, अगर नहीं पहुँचा तो एक्नॉलेजमेंट लाइक थिंग्स विल occur over there। इट मेंटेन्स द कनेक्शन स्पीड। कनेक्शन स्पीड कैसे करती है, लेट्स से आई एम डाउनलोडिंग सम फाइल ओवर द इंटरनेट एंड द सर्वर इज सेंडिंग द फाइल एट 10 Mbps, okay, and I am sending the file at I am but the my network speed is 2 Mbps। So if network is sending the data at faster rate and I am at the speed of the 2 Mbps at the lesser speed, then how I can receive, I can manage all this stuff. So the transport layer sends the request to the server that please slow down the data rate, so it will also slow down the data rate to 2 Mbps and all the synchronization will occur efficiently। तो ये होता है यार कुछ, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड विद बाय डिस्कसिंग द नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर में क्या होता है, इट ब्रेक्स अप द सेगमेंट्स इनटू पैकेट्स। सेगमेंट्स तो आ गए, अब उसको सेगमेंट्स को और छोटा करके उसको तोड़ना है, ठीक है। वो और तोड़ेंगे उसको क्या किस में डिवाइड करेंगे, सेगमेंट्स में डिवाइड करेंगे। तो जो अगर रिसीवर होगा तो जो सेगमेंट जो पैकेट्स हैं वो सेगमेंट्स में रीअसेंबल हो जाएंगे ऐसे, ठीक है। तो इट रूट्स पैकेट बाय डिस्कवरिंग द बेस्ट पाथ। नेटवर्क लेयर है, नेटवर्क में काफ़ी, अब ये हम आ गए हैं हार्डवेयर में, ठीक है। यहाँ पर हम कोई भी सॉफ्टवेयर के बारे में बात नहीं करें, यहाँ पर ये प्योरली हार्डवेयर बेस्ड आ गया, काम आ गया है। तो इसमें क्या होगा कि जो रूट है, नेटवर्क लेयर क्या करती है कि इस नेटवर्क में अगर मुझे ये पैकेट को राउट करना है उस जगह, तो उसका बेस्ट पाथ देखती है कि हाँ यहाँ ये बेस्ट पाथ है, मैं यहाँ पर जाऊँगी, मैं इस पाथ से सेंड करूँ इसको। तो वो कैसे सेंड करती है, यूजिंग आईपी एड्रेसेस। क्योंकि नेटवर्क लेयर में किसी भी फिजिकल डिवाइस के साथ हम डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकते, हम एक नेटवर्क का आईपी एड्रेस के थ्रू उसको कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। आईपी एड्रेस मीन्स इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसेस होते हैं। तो हम फर्दर भी इसको इन डिटेल डिस्कस करेंगे। So let's move forward to the next layer of the OSI model, that is data link layer। This is the second layer of the OSI model। सो डाटा लिंक लेयर में हम क्या कर रहे हैं, हार्डवेयर के ओस क्लोज जाए जा रहे हैं, ठीक है। जो नेटवर्क लेयर थी वो उसका हार्डवेयर के साथ लिंक इतना नहीं अच्छा नहीं था, तो दूर थी थोड़ी, उसकी इंटरेक्शन कम थी। अब डाटा लिंक लेयर उसके नीचे ले रहा है, उसकी इंटरेक्शन हार्डवेयर से थोड़ी सी ज़्यादा आ गई है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम इस लेयर को मैक एड्रेस की एक्सेस मिल जाती, एक्सेस नहीं मिलती उसके पास, हम एक्सेस नहीं मिलती बेसिकली, उसके पास मैक एड्रेस उसको मिल जाता है, हम उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं मैक एड्रेसेस के साथ। तो ये क्या करती है, जो फिजिकल डिवाइसेस होते हैं, ठीक है, जो फिजिकल नोड्स, जो कि फिजिकल डिवाइस लेट्स से कंप्यूटर्स होते हैं, जो फिजिकली उनके साथ जो कनेक्शन है वो इस्टेब्लिश होता है। तो अब क्या होगा, पहले सेशन लेयर ने, पहले ट्रांसपोर्ट लेयर ने जो डाटा आ रहा है उसको सेगमेंट्स में तोड़ा, सेगमेंट्स में ब्रेक किया। फिर जो हमारी नेटवर्क लेयर थी उसने सेगमेंट्स को पैकेट्स में ब्रेक किया। अब जो डाटा लिंक लेयर है ये पैकेट्स को फ्रेम्स में डिवाइड करेगी, फिर ब्रेक करेगी, ठीक है। अब देखो कैसे हायरार्की चल रही है इसकी। सो फ्रेम्स में डिवाइड हुआ तो रिसीवर साइड में क्या होगा, उसका रिवर्स हो जाएगा। जो फ्रेम्स आ रहे हैं वो पैकेट्स में रीअसेंबल होंगे, जो पैकेट्स आ रहे हैं वो सेगमेंट्स में रीअसेंबल होंगे, जो इतने सारे सेगमेंट्स होंगे वो डाटा में पूरे रीअसेंबल हो जाएंगे ऐसे, जब वो रिसीवर साइड एक्चुअली में एप्लीकेशन लेयर तक पहुंचेगी। तो इट इज़ कम्पोज ऑफ टू पार्ट्स। कंपोज ऑफ टू पार्ट्स है लॉजिकल लिंक कंट्रोल। मैं आपको बहुत बेसिक में बताता हूँ, लॉजिकल लिंक कंट्रोल में क्या होगा, वो प्रोटोकॉल चेक करेगी कि वो पर्टिकुलर ये जो नेटवर्क है कौन सी प्रोटोकॉल पे वर्क कर रहा है। तो जो मीडिया एक्सेस कंट्रोल है इसके पास उस डिवाइस का मैक एड्रेस होगा। तो हर डिवाइस का, लेट्स से हर कंप्यूटर का एनआईसी होता है, उसमें मैक एड्रेस डिफाइन होता है। तो हर पीसी का मैक एड्रेस अलग होगा। ये दुनिया में जितने भी पीसी हैं उन सबका अलग अलग मैक एड्रेस होगा, ठीक है। तो ये डाटा लिंक लेयर थी। नेक्स्ट कम्स दी फिजिकल लेयर। तो फिजिकल लेयर में क्या होता है, कुछ नहीं होता, जो डिवाइसेस में जो फिजिकल हमारे पास जो बिट्स में डाटा आ रहा है, ठीक है,
जो बिट्स में डाटा आ रहा है वो सिग्नल्स की फॉर्म में वायर्स के थ्रू ट्रांसफ़र होगा। और इफ़ वी आर यूजिंग अ वायरलेस मीडियम देन वो हमारे पास कुछ सिग्नल्स के थ्रू, ओके, तो वो सिग्नल्स के थ्रू ट्रांसमिट होगा, अगर नहीं तो केबल्स के थ्रू, वायरलेस के थ्रू। तो ये होता है कि फिजिकल लेयर में क्या होता है, वायर्स वगैरह आ जाती हैं, जो डाटा हमारा बिट्स की फॉर्म में आ रहा था वो अब सिग्नल्स की फॉर्म में ट्रैवल करता है, ताकि वो अदर कंप्यूटर तक जा सके। बिकॉज आपको तो पता ही है कि अगर हम डाटा एक कंप्यूटर से दूसरी कंप्यूटर में डालना है, अगर वो टू डिवाइस, कोई भी टू डिवाइस कम्युनिकेट करते हैं आपस में, तो उनके साथ वो सिग्नल्स में ही करते हैं, 0 1 की फॉर्म में करते हैं। 0 मीन्स लो सिग्नल, 1 हाई सिग्नल, ऐसे ऐसे। सो दैट्स इज द फिजिकल लेयर। अब आप सोचो कि यार ये क्या, मतलब मैं लेयर बताई जा रहा हूँ, मैं कोई कौन सी भी लेयर कोई भी पहले लिख दूँ ऐसे ऐसे हो जाएगा। अगर सेशन लेयर में पहले लिख दूँ, इसका ऑर्डर याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका ऑर्डर याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। आप सोचो कि यार अगर तो मैं ऑर्डर याद करने बैठ गया तो मैं काफ़ी टाइम निकल जाएगा, टाइम तो निकालना ही नहीं हमने। ठीक है, ऐसे शॉर्टकट बताऊँगा, एक बार पढ़ोगे, अगली बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको इसका ऑर्डर का, इसका ऑर्डर याद करने के लिए। तो शॉर्टकट ये है, आज फिर से टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। सीधी सी बात, आज फिर से टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। आप सोचोगे ये क्या बात हुई, ए से एप्लीकेशन लेयर, फिर से प्रेजेंटेशन लेयर, एस से सेशन लेयर, टेस्ट से टी से ट्रांसपोर्ट लेयर, एन से नेटवर्क लेयर, डी से डाटा लिंक लेयर, पी से फिजिकल लेयर। आपको सिर्फ एक लाइन याद रखनी है, आज फिर से टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, एंड दैट्स इट। ऑर्डर याद हो गया, done. So done for this video. And if you like this video, if you learned something new, if your concepts of the OSI model got revised, and if you learned something new, then do subscribe this channel. Do like this video if you like this video. And that's it. Yeah, one thing more will be coming soon. Soon means very soon.